वाले शेप्स बताए मैंने आपको, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल। तो इसमें मैंने सिस्टम, एक्सियल डिस्टेंस, एक्सियल एंगल्स, एग्जांपल्स। तो क्यूबिक का है एक्सियल डिस्टेंस होता है, जो एक्सियल डिस्टेंस था उनका तीनों के तीनों इक्वल होते हैं, इक्वल टू बी इक्वल टू सी। एक्सियल एंगल्स, all angles in this cubic system, alpha, beta, gamma is all are equal to 90 degree. Some examples are there of cubic form: NaCl, KCl, zinc sulfide, copper and silver. Second crystal system, tetragonal. In this axial distance A equal to B, but B is not equal to C. Now axial angles, all axial angles are equal to 90 degree, alpha, beta and gamma. Some examples of tetragonal crystal system: tin oxide and titanium oxide. Third crystal system, orthorhombic. All axial distance are not equal. A is not equal to B, not equal to C, but all angles are equal to 90 degree. That is alpha, beta, gamma equal to 90 degree. Some examples of orthorhombic system, crystal system: potassium nitrate, KNO3, lead carbonate, PbCO3. Fourth crystal system, that is monoclinic. Axial distance A not equal to B, not equal to C. All edge lengths are different, and axial angle of monoclinic is alpha is equal to gamma. Alpha and gamma each 90 degree, and beta is not equal to 90 degree. Some examples of monoclinic: calcium sulfate, bihydrate, CaSO4 dot 2H2. Now fifth crystal system, rhombohedral. That is rhombohedral cubic form, same axial distance. A is not equal to B, A equal to B equal to C, and axial angle of rhombohedral, alpha, beta, gamma, all angles are equal but not equal to 90 degree. For examples: quartz, silicon oxide, SiO2, quartz, mercury sulfide, HgS and Sb. Now sixth crystal system, that is triclinic. All axial distance are not equal. A not equal to B, not equal to C. All are different from each other. Their axial angles are also different. They all are not equal to 90 degree. They are all different. For example, some example of triclinic is copper sulfate, pentahydrate, potassium dichromate, K2Cr2O7. Now hexagonal system, seventh crystal system, hexagonal. A equal to B, two edge lengths are equal, but another edge length is not equal to B. Now axial angle, alpha and beta angles are 90 degree, and gamma is equal to 120 degree. Some examples: zinc oxide and cadmium sulfide. These are the 7 crystal 3D dimensional crystal system. वैसे 14 होते हैं, 14 पॉसिबल 3D सिस्टम बन सकते हैं जो प्रेवियस ने दिए थे, और 5 2D डायमेंशनल जो मैंने आपको पीछे बताया था, 5 2D डायमेंशनल जो मैंने आपको ड्रॉ भी किया था। स्क्वायर लेटिस था, एक ट्रायंगुलर स्क्वायर लेटिस था, एक रेक्टेंगुलर लेटिस था, पैरेललोग्राम लेटिस, और एक हेक्सागोनल लेटिस, और एक रोम्बोहेड्रल लेटिस। तो ये 5 थे 2D पॉसिबल डायमेंशनल, और ये हैं 14 है, उसमें से 7 क्रिस्टल सिस्टम मैंने आपको ये बताया जो ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक्सियल एंगल, एक्सियल डिस्टेंस, जो आप 12th के बाद AIEEE, JEE मेंस, मेडिकल का जो भी आप एग्जाम देंगे, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है। उसमें या तो कोई भी सिस्टम दे देंगे, ऑर्थोनॉमिक सिस्टम में आपको ऑप्शन देंगे उनका एक्सियल डिस्टेंस क्या होता है, 4 ऑप्शन, तो ये आपको लर्न रखना बहुत जरूरी है। जैसे किसी का भी एक्सियल एंगल पूछ सकते हैं मोनोक्लिनिक, तो मोनोक्लिनिक में एक्सियल एंगल क्या होता है, तो इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आपके 12th और बोर्ड में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। इसमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइम में क्वेश्चन, लेकिन आफ्टर बोर्ड 12th के बाद जो भी आप एग्जाम देंगे अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग, तो उसमें भी ये क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है। तो these 7 crystal system are very important for the point of examinations. Now next topic, next topic is type of unit cell.
टाइप ऑफ यूनिट सेल मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, अब मैंने आपको डिस्कस किया था। द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन स्पेस दैट इज व्हिच व्हेन ओवर रिपीटेड अगेन एंड अगेन टू फॉर्म अ कंप्लीट स्पेस that is called unit cell. The type of unit cell, there are 4 type of unit cell. First is simple unit cell, or it is also called primitive unit cell. इसको SCC भी बोल सकते हैं इसको। देखिए सिंपल यूनिट सेल क्या होता है? अ सिंपल यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ लैटिस पॉइंट ओनली एट द कॉर्नर्स। सिंपल यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ लैटिस पॉइंट ओनली एट द कॉर्नर्स। देखिए मैं आपको समझाऊंगा। जैसे मैंने एक क्यूब बनाया, सिंपल यूनिट सेल फॉर्म क्या होते हैं? जिसमें कि जो लेटेस्ट पॉइंट होते हैं, जो कॉर्नर्स में प्रेजेंट होते हैं लेटेस्ट पॉइंट, उसको हम कहते हैं सिंपल यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो देखिए जैसे इसमें लेटेस्ट पॉइंट कॉर्नर में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दीज आर कॉल्ड सिंपल यूनिट सेल। सेकंड, फेस centered units, face centered cubic unit cell। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल वो होते हैं, वो टाइप ऑफ यूनिट सेल हैं जिसमें कि जो लेटेस्ट पॉइंट होते हैं वो कॉर्नर्स में तो होते हैं, लेकिन जो क्यूब के फेस होते हैं उसमें भी लेटेस्ट पॉइंट्स होते हैं। तो दैट इज कॉल्ड face unit cell. In face centered unit cell of their lattice point at the center of each face and as well as at corners. जैसे फॉर एग्जांपल इसी में मैं आपको समझा रहा हूँ फेस सेंटर्ड। तो एक अगर मान लीजिए ये फेस है, एक फेस हो गया, उसमें अब इसी के अपोजिट, जैसे मैंने ये लिया, इसी के अपोजिट एक लिया, इसमें भी अब एक गया, तो अब एक ये, नेक्स्ट ये वाला हो गया। अभी टोटल हो गए 6। फेस यूनिट सेल में कितने होते हैं? टोटल 6। नेक्स्ट थर्ड है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है? लेटेस्ट पॉइंट कॉर्नर्स में भी होते हैं, एक कॉर्नर्स को नहीं, लेकिन एक जो होता है वो किसमें होता है? पूरे क्यूब के बॉडी में जो सेंटर पॉइंट होता है पूरे क्यूब का, एक उधर होता है, उसी को हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। जैसे इसी में मैं आपको समझाता हूँ।
जैसे ये पूरा क्यूब है और इस क्यूब के पूरे इस पूरे क्यूब का जो सेंटर है, बॉडी सेंटर, इस पूरे क्यूब का सेंटर पॉइंट, तो उसी को हम कहेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट्स। तो इसको हम बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट्स। मैं इसी में ही ये सब समझा रहा हूँ, बॉडी सेंटर्ड यूनिट्स है जिसमें कि 8 कॉर्नर्स में और एक सेंटर पॉइंट है, तो उसको हम कहेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट्स। फोर्थ एक और होता है एंड सेंटर्ड यूनिट्स। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। देखिए इसमें क्या होता है, एंड सेंटर्ड 8 तो कॉर्नर्स में होते हैं, लेकिन कोई भी क्यूब के 2 अपोजिट फेसेस में उनके सेंटर में जो पॉइंट, लेटेस्ट पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं एंड यूनिट, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। 8 एट कॉर्नर्स, जैसे 8 कॉर्नर्स में तो नहीं है, लेकिन कोई भी 2 अपोजिट फेस जो क्यूब के होते हैं उसके सेंटर में जो लेटेस्ट पॉइंट होते हैं उसको हम बोलते हैं एंड यूनिट सेल। जैसे मैंने ये बना दिया, ये 2 उसको हम कहते हैं एंड यूनिट सेंटर्ड सेल। तो ये आपको अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ, एससीसी में लेटेस्ट पॉइंट 8 एट कॉर्नर्स, फेस सेंटर्ड में 6 लेटेस्ट पॉइंट एट फेसेस और 8 कॉर्नर्स में। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल 1 एट क्यूबिक सेंटर, 1 लेटेस्ट पॉइंट एट क्यूब सेंटर, जो पूरा क्यूब का सेंटर कॉर्नर 8 कॉर्नर्स में और एक क्यूबिक सेंटर में, सेंटर ऑफ द बॉडी में। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में 2 अपोजिट फेसेस, 8 एट कॉर्नर्स और 2 एट सेंटर ऑफ अपोजिट फेसेस। 2 अपोजिट फेसेस के सेंटर में लेटेस्ट पॉइंट, उसको हम बोलते हैं एंड। 8 कॉर्नर्स में और 2 किसी भी क्यूब के कोई भी अपोजिट फेस के सेंटर में, उसको एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड 8 एट कॉर्नर्स एंड एक क्यूब सेंटर, जो पूरे क्यूब का सेंटर होगा तो वो बॉडी सेंटर में। एफसीसी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में 8 कॉर्नर्स में लेटेस्ट पॉइंट के और हर एक फेस के सेंटर में, तो टोटल क्यूब में कितने फेस हो रहे हैं 6, तो 6 एट फेसेस। और सिंपल यूनिट सेल ओनली एट कॉर्नर्स, लेटेस्ट पॉइंट दैट इज 8 कॉर्नर्स। Now number of particles, next topic is number of particles in a unit cell. नेक्स्ट टॉपिक नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं एक यूनिट सेल में, तो ये ध्यान रखिएगा। देखो ये इसको किस तरीके से समझना है, ईच पार्टिकल एट द कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल shared by each particle at the corner of unit cell is shared by 8 unit cell in the 3 4 contribution
each particle at the corners of unit cell is shared by 8 unit cell in the lattice cell, therefore contribution at the corner is 1/8. अगर हम एक क्यूब उसमें बना रहे हैं जैसे मैंने फिर एक क्यूबिक फॉर्म बना रखा है 3D स्ट्रक्चर नेटवर्क। इसमें देखिए ईच पार्टिकल एट द कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल, जैसे 8 पार्टिकल्स कॉर्नर है या 8 एटम्स मान लीजिए, पार्टिकल्स आयंस मॉलिक्यूल्स एटम, ये हर एक एटम ये 8 और यूनिट सेल इन द लेटिस सेल जो शेयर, इसकी जो शेयर होती है इस एक एटम की, एक यूनिट जो कॉर्नर प्रेजेंट है वो 8 एटम अलग ही, और एक और जो रिपीटिंग यूनिट सेल होता है उसके 8 एटम के साथ भी अपने आप को कंट्रीब्यूट करता है। तो इसका जो कंट्रीब्यूशन हो जाता है इस एक कॉर्नर जो एक एटम को कितना होता है 1/8। तो जैसे अगर हम इसमें नंबर ऑफ एटम्स निकालें, अगर इसमें कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो अगर आप जैसे ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, इसमें हमने बोले कॉर्नर्स में है, तो अगर हम इसमें निकालें कि हाउ मेनी एटम्स इन दिस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो कैसे निकलेगा? देखो हर एक एटम एक कॉर्नर में, इसमें टोटल 8 है, और हर एक एटम्स जो कॉर्नर में प्रेजेंट है या लेटिस पॉइंट जो कॉर्नर में प्रेजेंट है वो कितना कंट्रीब्यूट करेंगे और यूनिट सेल से, उसका कितना आ गया 1/8। तो टोटल जो इसका यूनिट जो एटम्स आ गए वो कितना आ गया 1। और किसका? सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट्स। तो इसके साथ साथ आप ये भी समझते रहिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स यूनिट सेल कि किस तरीके से हम नंबर ऑफ एटम्स भी निकाल सकते हैं इसमें सिंपल यूनिट सेल, क्योंकि मैंने सिंपल यूनिट सेल बनाया हुआ है तो इसके बारे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, ईच पार्टिकल्स एट द कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल, कॉर्नर इन इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल इन द लेटिस सेल। क्योंकि इसमें और भी, क्योंकि पूरा एक स्पेस लैटिस बनता है, पूरा क्रिस्टलाइजेशन स्ट्रक्चर बनता है, तो उसमें लैटिस यूनिट सेल रिपीट होते रहते हैं। मैंने आपको यूनिट सेल की डेफिनेशन बताई थी कि एक सेल जो अपने आप को रिपीट करता है, अगर ये सेल पूरा एक्सटेंड हो क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में, तो हर एक जो कॉर्नर्स में एटम प्रेजेंट होते हैं या पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं वो हर एक एटम 8 और यूनिट सेल के एटम के साथ कंट्रीब्यूट अपने आप को करते हैं। तो इसलिए उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, एक उसका 1/8, और टोटल कॉर्नर्स कितने हैं 8, तो 8 इंटू, तो इसका एटॉमिक्स कितना होगा 1, और किसका है सिंपल यूनिट सेल। अंडरस्टूड? नाउ सेकेंड, atom at the edge center. Atom at the edge center is shared by 4 unit cell. In the cell, therefore the contribution H center is 1/4. Now atom at the H center is shared by 4 unit cell in the lattice cell.
Therefore the contribution at the edge center is 1/4. अभी हम एज सेंटर की बात कर रहे हैं, तो सपोज मान लीजिए मैंने एक ये वाला फेस ले लिया, या आप ये फेस ले लीजिए, इसमें जो एज लेंथ का सेंटर है, एज लेंथ का सेंटर, इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है और यूनिट सेल के साथ, अगर हम एक लेटेस्ट पॉइंट ले रहे हैं या एक एटम प्रेजेंट इन दी एज सेंटर, इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, और यूनिट सेल के एज सेंटर से 1/4। तो ये टोटल, क्योंकि कॉर्नर्स, क्योंकि जो जितने भी एज हैं, अगर एक पूरा सेल के कितने हैं, 1 2 3 4 होते हैं, तो 4 के कितना हो जाएगा, इसका कंट्रीब्यूशन 1/4। नाउ थर्ड पॉइंट, each particle at the phase center, third point है, each particle at the phase center of unit cell is shared by 2 unit cell in the lattice cell, therefore contribution at the phase contribution will be 1/2। देखो हम पहले हमने कॉर्नर्स की बात करी, तो कॉर्नर्स में हो गया हमारा 1/8, 1/8। फिर हमने बात करी एच सेंटर की, तो उसका 1/4 4 होते हैं, तो 1/8, क्योंकि 8 कॉर्नर्स हैं, तो हर एक एटम कितने को करेगा, 8 कॉर्नर्स के साथ कंट्रीब्यूट करेगा ये एटम, ये पार्टिकल, इसलिए 1/4। अब हम फेस सेंटर की बात करें, तो फेस सेंटर में ये जैसे मैंने एक ले लिया, इसका एक फेस सेंटर, तो ये कितने करेगा, 1/4। जो इस फेस सेंटर में एटम्स हैं या पार्टिकल्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स हैं, वो कंट्रीब्यूट करेंगे, एक एटम कंट्रीब्यूट करेगा दूसरे यूनिट के सेल के साथ हाफ पोर्शन और हाफ इसमें, तो इसका कंट्रीब्यूशन हो गया 1/2। टोटल जैसे फेस सेंटर्स इस पार्ट को फेस, जैसे ये कितने होगा, इधर भी करेगा 1/2, ये हो गया, सॉरी ये हो गया 1/2। मैंने आपको अभी एक का बताया है, ये पार्टिकल हो गया। Third, each particle at the phase center of unit cell is shared by 2 unit cell in the lattice cell, therefore contribution at the phase is 1/2। Now fourth point, atom at the body center is shared by 1 unit cell in the lattice cell, the contribution, therefore the contribution will be 1। अब पूरे सेंटर का बॉडी जो होगा, बॉडी सेंटर का, तो उसमें एक ही लेटेस्ट पॉइंट होता है, तो उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा, वो 1 ही रहेगा। तो ये है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ यूनिट सेल। अब इसमें देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें आपको ये याद रखना है कि हर एक कॉर्नर्स में कितना कंट्रीब्यूशन होता है, और एच सेंटर में पार्टिकल्स जो होते हैं वो कितना कंट्रीब्यूशन करते हैं, फेस सेंटर में पार्टिकल्स का कितना कंट्रीब्यूशन होगा दूसरे यूनिट के सेल, और बॉडी सेंटर में कितना कंट्रीब्यूशन होगा दूसरे यूनिट का सेल के साथ। तो जैसे मैंने आपको बताया पहले, जो कॉर्नर में थे तो वो 1/8 होते हैं, हर एक 8 जो कॉर्नर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, अदर यूनिट कॉर्नर्स के, तो उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 है, एच सेंटर में 1/4 है। और अगर फेस सेंटर की बात करेंगे, एक फेस सेंटर, उसका जो लेटिस तो पार्टिकल्स होते हैं वो दूसरे यूनिट के सेल के साथ कितना, हाफ इधर और हाफ उधर, तो 1/2। और बॉडी सेंटर का एक ही होता है, तो उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो एक ही अपने ही यूनिट सेल के लिए रहता है।